Welcome students, good morning all of you. So today we are going to start a chapter of organic chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. In this chapter we first of all we have to know that what are haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes haloarenes क्या होते हैं बच्चों, ये हमको पता होना चाहिए. How they are formed. So these haloalkanes and haloarenes are formed by aliphatic and aromatic compounds. Aliphatic और aromatic compounds से ये haloalkanes haloarenes बनते हैं. So let us see. RH. This is the aliphatic compound. This is an aliphatic compound. ठीक है ना? So in this aliphatic compound, we replace this hydrogen atom by the halogen atom. For example, let us take a general form of halogen X. हम halogen को यहाँ पर X से represent करेंगे. In this compound, hydrogen is replaced by this halogen, and we will get RX. R is the alkyl group, so this is called haloalkane. This is called haloalkane. So from aliphatic hydrocarbon we remove hydrogen atom by the halogen atom, we get haloalkane. Similarly, when hydrogen is removed by halogen, hydrogen is removed by halogen from benzene ring, or we can say that from aromatic ring, then we will get haloarene. Then we will get haloarenes. So this is example of haloarenes. So we get haloarenes. Is it clear? तो आपको समझ आ गया होगा हेलो एल्केन्स हेलोरेन्स क्या होता है. जब भी हम हेलोजन एटम से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह हेलोजन एटम लगा देते हैं किसी भी एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में, उसको हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स. सो now we will move to the next topic, that is classification of haloalkanes and haloarenes. Classification of haloalkanes and haloarenes. So first of all we classify on the basis that the compound in which a compound in which the number of halogen compounds are connected with it. देखिए, on the basis of the number of halogen atoms, कितने हेलोजन एटम्स कनेक्टेड है हमारे हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स पे, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासिफाई करा. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 X. X is the halogen, so this is called mono haloalkane. क्योंकि यहाँ पर एक हेलोजन कनेक्टेड है इस चेन के साथ, तो ये क्योंकि हेलोएल्केन है, सो इस यहाँ पर एक हेलोजन है, सो इसका क्या नाम होगा, हेलोएल्केन. अनदर एग्जांपल CH2 X. So there are two halogen atoms are connected with this chain, so that is why it is called dihaloalkanes. If three halogen is connected with carbon chain, like this, then it is called trihaloalkane. तो हम इसको क्या कहेंगे, trihaloalkanes, because these all are haloalkanes and in this compound one halogen is connected, that is called monohalogen. In this compound two halogen atom is connected, that is called dihalogen, and in this compound there are three halogen, so it is called trihalogen compound. Is it clear? Similarly, haloarenes are also classified on this basis. So let us see. In this benzene ring there is one halogen atom, so it is called monohaloarene.
if two halogen is connected with it, it is called dihaloarenes, and if three halogen is connected with the benzene ring, then it is called trihaloarenes. Is it clear? Is it clear? So यहाँ पर हमने क्या करा, हेलो एल्केन्स को हमने क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ द हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हमने क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कनेक्टेड विद द कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स के साथ हमारे हेलो एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कितने हेलोजन एटम कनेक्टेड हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई करा. इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज the compound containing sp3CX bond. Second one is compound containing sp3CX bond. sp3CX bond. तो हम उन हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कार्बन और हेलोजन के बीच में जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आते हैं एल्काइल्स, एल्काइल हैलाइड्स. देखिए CH3 CH2 CH2X. अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं दिस हेलोजन कंपाउंड इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. So CX bond is sp3 hybridized, so it is classified on the basis of the compound containing sp3 CX bond, and this haloalkane is called primary. ये primary compound बन गया, 1 degree compound बन गया. Is it clear? Now CH3 CH2 CH3 CH CH3 और हमने यहाँ पर हेलोजन लगा दिया इस सेकेंड कार्बन पे. So this compound is called secondary अल्काइल हैलाइड. ये क्या कहलाया जाएगा, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये क्या कहलाया जाएगा, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. इसको हम 2 डिग्री भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हेलोजन जो है उस कार्बन से कनेक्ट है जो आगे 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको सेकेंडरी कहा गया है. और यहाँ पर हेलोजन एटम उस कार्बन एटम से कनेक्ट है जो आगे सिर्फ एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो CX बॉन्ड कैसा है यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. अब आगे देखेंगे इसमें फर्दर एग्जाम. और देखिए अगर यहाँ पर ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता CH3 C CH3 CH3X, तो यहाँ पर हेलोजन एटम उस कार्बन से कनेक्ट है जो आगे 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और वी कैन से दैट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो हमने यहाँ पर क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड. हमने हेलो एल्केन्स को किसके बेसिस पे क्लासिफाई करा, जिसके अंदर CX बॉन्ड कैसा हो, sp3 हो. तो ये तो थे हमारे अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है ना. अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं हमारे यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड्स. एलाइलिक हैलाइड्स बी पार्ट. एलाइलिक हैलाइड्स, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होंगे, इसमें भी CX बॉन्ड कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा. बट यहाँ पर एक कंडीशन हो रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे. CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पे CH आएगा, CH2X. सो देखिए बच्चों, ये हेलोजन कंपाउंड इस कार्बन से कनेक्टेड है. दिस हेलोजन कंपाउंड इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट this carbon is connected with this carbon atom which is sp2 hybridized. आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस कार्बन से हमारा हेलोजन कनेक्ट था वो भी आगे फर्दर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड था, इसलिए हमने इनको क्या कहा, अल्काइल हैलाइड्स, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, हेलोएरीन्स. बट यहाँ पर हमने इनका क्या नाम रखा, एलाइलिक हैलाइड्स. इन हेलो जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं ये, इनका हमने मेन क्या नाम रखा, एलाइलिक हैलाइड्स. इनका इन जनरल नेम क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड्स. तो यहाँ पे देखिए हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है,
तो सी एक्स बोन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, बट यहाँ पर जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके बराबर वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिंग फॉर्म में यहां पर हेलोजन कनेक्ट कर दिया, तो इस कार्बन पे हेलोजन कनेक्टेड है, सो दिस कार्बन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो सी एक्स बोन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, बट इसके बराबर वाला कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। इसको भी हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। ये जर्नल नेम है, ये इनके IUPAC नेम या फिर कोई कॉमन नेम नहीं है, ये जर्नल नेम है, इन सबको हम एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर थर्ड पार्ट इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं देखेंगे। यहाँ पर भी सी एक्स बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज होगा बच्चों, यहाँ पर भी सी एक्स बॉन्ड कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट यहाँ पर आप देखेंगे CH2X, यहाँ पे हेलोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि ये जो कार्बन है ये बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। CX बॉन्ड कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अच्छा ये देखो यहाँ पर ये कार्बन कैसा होगा, ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कि यहाँ पर हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कनेक्ट है, बट उसके बराबर वाला कार्बन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इज इट क्लियर। चलिए अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं बच्चों उसमें, जैसे CH2X, यहाँ पर मैंने एक CH3 लगा दिया, तो ये तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये कैसा हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। इसको हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमने देखना है, थर्ड क्लासिफिकेशन इज कंपाउंड कंटेनिंग कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। इज इट क्लियर। सो there are also two parts. First part is विनाइलिक हैलाइड, यहाँ पर आएगा विनाइलिक हैलाइड। देखिए विनाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल CH2 double bond CHX. So here halogen is connected with this carbon atom which is sp2 hybridized. Here halogen is connected with this carbon atom which is sp2 hybridized. Directly sp2 hybridized कार्बन के साथ हमारा हेलोजन एटम कनेक्ट हो गया। तो इस टाइप के जो हेलोअल्केन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। चलिए और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने वहां पे रिंग फॉर्म में देखा था, साइक्लिक रिंग थी, यहां पर हमने डायरेक्ट हेलोजन एटम उस कार्बन से कनेक्ट कर दिया जो कि कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. So this example is also the vinylic halide. This example is also for of vinylic halide. Is it clear? Now B part, arylic halide. arylic halide. arylic halides कौन से होते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहां पर भी CX bond कैसा होगा, sp2 hybridized. Here the CX bond is also the sp2 hybridized, but halogen is connected on the benzene ring. So this carbon is sp2 hybridized and this CX bond is कार्बन CX bond कैसा है बच्चों, यहाँ पर sp2 hybridized, और ये किसके ऊपर कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग के ऊपर कनेक्टेड है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एराइलिक हैलाइड्स. इसको हम क्या कहेंगे, एराइलिक हैलाइड्स. और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, X, this carbon is sp2 hybridized, so this is also example of arylic halide. Is it clear? So this is a classification of haloalkanes and haloarenes.
आई होप बच्चों आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने क्लासीफाई करा हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स को। तो आप इसको केयरफुली देखें और एनसीईआरटी से जरूर इसको रीड आउट करें। एनसीईआरटी के पेज नंबर 1st, 2nd एंड 3rd पर आपको ये ऑब्जर्व हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से यहाँ पर देखें, रीड आउट करें, वीडियो को देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करें मेरे से। इज इट क्लियर? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।